students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is nervous system and sense organs. And you will be aware about nervous system, reflex actions and sense organs. Our nervous system organizes and keeps a track of everything that goes on inside us. It also helps us to respond to the world around us. The nervous system receives all the messages that the eyes see, skin feels, ears hear, टंग टेस्ट्स एंड नोज स्मेल्स. तो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है ये आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं या आपके अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं उसको रिस्पॉन्ड करवाता है आपकी बाहरी दुनिया की तरफ. And everything that you listen, that your ears listen, that your tongue tastes, that your nose smells, that your mouth speaks, or whatever happens in the outside world जिसको आपकी internal body structure या sense organs react करते हैं, वो आपके सारे के सारे nervous system से ही possible हो पाता है. Now let's see what is a nervous system. Nervous system is the most important organ system of our body. It controls all the other organ system. It consists of the brain, the spinal cord and the nerves. Let us discuss more about them. तो आपका जो nervous system होता है ये organ system का बहुत ही important part होता है हमारी body का. सारे के सारे organ systems को ये ही control करके रखता है. Now let's see आपके nervous system में क्या क्या आता है. Number 1 is brain. The brain is the master of our body. Every action, sending or receiving messages of the body is in its control. It is the greyish pink in color and looks like a walnut. Brain is a very delicate organ weighing 1.4 kg. It is protected by a bony cage called cranium inside the skull. तो brain होता है आपका, ये आपकी body का master होता है. सारी चीज़ें आपकी body में जो आप बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, आप taste कर पा रहे हो, आप चल पा रहे हो, जितनी भी चीज़ें आपकी बॉडी कर पा रही है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द ब्रेन. इफ़ योर ब्रेन डजंट वर्क प्रॉपरली और डजंट फंक्शन प्रॉपरली यू वोंट बी एबल टू डू एनी ऑफ द टास्क दैट योर बॉडी परफॉर्म्स. तो ब्रेन जो होता है इट इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ योर बॉडी. जितने भी मैसेजेस को भेजना हो गया या रिसीव करना हो गया वो ब्रेन ही करता है. ऑलमोस्ट 1.4 kgs ये वे करता है और ये एक बोनी केज ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है विच इज़ नोन एज क्रेनियम, which is present inside the skull. More to know. Between cranium and brain, some sacs filled with liquid are present. Cranium and this liquid protect the brain from shocks, jerks and bumps. अब आपका जो cranium होता है, between cranium and brain आपके कुछ sacs present होते हैं जिसमें liquid present होता है. ये जो sac liquid से भरे हुए होते हैं, because of these your brain is protected from all kinds of shocks, jerks and बम्प्स. झटकों से आपके ब्रेन को ये सैक्स प्रोटेक्ट करके रखते हैं. द ह्यूमन ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स. नंबर 1 इज सेरिब्रम. द लार्जेस्ट पार्ट, नियरली 85% ऑफ ब्रेन्स वेट इज मेड फ्रॉम सेरिब्रम. तो आपकी बॉडी का जो ब्रेन होता है पहला पार्ट सेरिब्रम, 85% जो ब्रेन होता है वो सेरिब्रम से ही कंसिस्ट करता है. इट हैज मेनी फोल्ड्स एंड ग्रूव्स. दिस पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स स्पीच, मेमोरी and intelligence. It also controls the working of sense organs of our body. तो ये cerebrum जो होता है जो 85% आपके ब्रेन का पार्ट होता है, क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता है? स्पीच, जो आप बोल पाते हैं ढंग से, स्पीच को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है और इंटेलिजेंस को सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज सेरिबेलम. Cerebellum is present below the cerebrum. It is also called the little brain. It helps to maintain the balance and posture of our body. It regulates and coordinates the movements of the muscles. फिर आपका आता है cerebellum. इसको क्या बोलते हैं? इसको little brain भी बोला जाता है. ये आपकी बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने में प्लस आपकी जो मसल्स के अलग अलग कोऑर्डिनेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, उसको रेगुलेट करता है. एंड द थर्ड पार्ट इज द मेडुला ओब्लोंगेटा और brain stream. It is the lower portion of the brain. It joins brain to the spinal cord. It controls the basic life functions such as breathing, digestion, heartbeats, blood pressure, etc. It also controls the movement of involuntary muscles. फिर आपका आता है medulla oblongata या फिर इसको brain stream भी बोला जाता है. Lower portion होता है ये आपके brain का जो आपके neck के साथ almost connected रहता है. आपकी breathing का function हो गया, digestion, heartbeat, blood pressure, इन सारी चीज़ों को medulla oblongata ही control करके रखता है या फिर regulate करता है. Next is spinal cord.
Spinal cord is a bundle of nerves that connects entire body to the brain through nerves. It is protected by the backbone. It starts from the brain stream and continues down to the lower end of our backbone. फिर आपका spinal cord आता है. ये क्या होता है, आपके entire body को brain जो आपके nerves होती हैं उनके साथ connected रखता है. ये आपकी बैकबोन से प्रोटेक्टेड होते हैं, जितने भी आपके नर्व्स होते हैं. इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, जो आपका मेडुला ओब्लोंगेटा होता है उसके साथ ये स्टार्ट होता है और बिल्कुल आपके जो लोअर एंड होता है बैकबोन का वहाँ तक कनेक्टेड रहता है. ये यहाँ पर आपका मेडुला ओब्लोंगेटा यानी कि ब्रेन स्टेम होता है, ये आपका लोअर पोर्शन हो गया बैकबोन का. ये पूरा का पूरा जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है. It helps to transfer the information and nerve signals between the brain and rest of the body. It also controls the reflex actions. तो आपकी बॉडी के जितने भी information हो गया, nerve signals हो गए ब्रेन और बाकी बॉडी के बीच में, उसको कोऑर्डिनेट करता है. प्लस जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, कभी कभी आप खड़े होते हैं, सडनली कोई आ जाता है, सडनली कुछ हो जाता है, सडनली आपके एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, उसकी तरफ जो आप सडन रिएक्शन देते हैं, दैट इज नोन एज योर रिफ्लेक्स एक्शन. वो भी आपका स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही होता है. नेक्स्ट इज नर्व्स. Nerves are made up of special cells called nerve cells or neurons. Our body has a network of nerves to carry messages between the brain and other parts of the body. Our body has a following types of nerves. तो आपके जो nerves होते हैं special cells से बने होते हैं which are known as nerve cells or neurons. ये पूरा network होता है एक nerve जो आपकी brain से other जो आपके बाकी body parts होते हैं उन तक messages को coordinate करता है, transfer करवाता है. कितने type के nerves होते हैं? सबसे पहला होता है sensory nerves. The nerves which bring messages from the sense organs and carry to the brain and spinal cord are called sensory nerves. These messages are interpreted by the brain or spinal cord and we are able to see, hear, smell, taste and touch. अब sensory nerves होता है कि body parts से जितने भी information होती है brain तक जाता है. Hence these are known as sensory nerves और इन्हीं की वजह से आप देख पाते हो चीज़ें, smell कर पाते हो, taste कर पाते हो और सुन पाते हो. Next is your motor nerves. These nerves carry messages from the brain or the spinal cord to the different muscles and glands. These messages result in the movement of muscles or secretion of glands. अब motor nerves होती हैं, ये आपकी जो nerves होती हैं ये messages को आपकी brain से spinal cord और अलग अलग muscles या फिर glands तक messages को transfer करवाती है. And third is your mixed nerves. These nerves do both the functions. It means they carry messages to the brain as well as carry orders from the brain. अब mixed nerves होते हैं, ये दोनों काम करती है. आपकी body से message information को brain तक पहुंचाती है, उसके बाद brain जो respond करता है उसको बाकी body parts तक वो messages को transfer करती है. Hence these nerves are known as mixed nerves. More to know. The total length of all the nerves present in the body of an adult human being is about 72 kilometers. तो एक human body में जितनी nerves आपकी total हैं उसको अगर assemble करा जाए तो collectively उसका जो distance होता है, जितना उसका area cover होता है वो around 72 kilometers है. Now the next topic is reflex actions. A reflex action is an automatic reaction of the body to a stimulation. For example, on touching a hot object, we pull our hand back immediately. On seeing delicious food, our mouth starts watering. On seeing any fast-moving object towards us, we close our eyes, etc. All these actions are not controlled by the brain. Instead, these actions are controlled by the spinal cord. The spinal cord decides what to do and quickly sends the decision to the body part. तो unlike other activities जो आपकी brain control करता है आपकी body में, reflex actions जो होते हैं spinal cord control करता है. रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज. ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज मतलब आपका ब्रेन इसमें कोई भी फंक्शन प्ले नहीं करता है, इंस्टेड स्पाइनल कॉर्ड करता है. फॉर एग्जांपल आप अचानक से अगर आपको नहीं पता है कोई पतीला रखा है बहुत ज़्यादा गर्म है और आपको नहीं पता, अगर आप उस पर हाथ लगते हैं तो तुरंत ही आप अपना हाथ पीछे विड्रॉ कर लेते हैं. कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ चीज़ आ रही है, बहुत आप किसी एडवेंचरस पार्क में गए हैं, आप किसी झूले पे बैठे हैं, तुरंत ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से कोई झूला जाता है, आप ऑटोमेटिकली अपनी आंखें बंद कर लेते हैं अगर आपको डर लगता है. तो ये सारे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है. इंस्टेड स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो बॉडी पार्ट्स को इंस्टेंट रिएक्शंस भेजते हैं कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है. Evaluate yourself. Fill in the blanks. So now here are some questions. अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसके बेसिस पे आपसे कुछ questions पूछे जाएंगे जिसके आंसर्स आपको खुद से देने हैं. Next is sense organs.
The organs which help us to know about the world are called sense organs. So we have 5 sense organs in our body. These are eyes, ears, nose, tongue and skin. These organs help us to see, hear, smell, taste and feel respectively. अब reflex actions के बाद next organs कौन से हैं आपके? Sensory organs. Sensory organs total जो human body में होते हैं 5 होते हैं और आपकी आसपास की जो दुनिया होती है, आप जितनी चीजें देख रहे हो, फील कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, सुन पा रहे हो, ये सारे आपके सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से होते हैं. ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? योर आईज, आंखों से आप देख सकते हो, ईयर्स सुन सकते हो, नोज से आप स्मेल करते हो, टंग से आप टेस्ट करते हो और स्किन से आपको चीजें फील होना शुरू होती हैं. सो हियर आर योर 5 सेंसरी ऑर्गन्स. इनसे आप अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करते हो. हेंस दीज ऑर्गन्स आर नोन एज sense organs. First sense organ is eyes. Eyes help us to see the world around us. It is like a camera that constantly adjusts itself to take and develop a continuous series of pictures. Our eyes are covered with eyelids which protect them from dust, insects and other harmful things. तो eyes जो होते हैं they are also known as the natural cameras. जो आपके cameras एक्चुअल में बने भी होते हैं वो आपकी आंखों से ही इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं. जिस तरीके से कैमरा में आप फोकल लेंथ चेंज करते हो, फोकस चेंज करते हो, अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, जो आईज होती हैं वो नेचुरल कैमरे की तरह काम करती हैं और जितना भी फोकस होता है, फोकल लेंथ को बढ़ाना होता है, वो आईज अपने आप ही कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट करती रहती है. कभी कभी आप नोटिस करेंगे सडनली लाइट जब खुलती है तो आपकी जो आंखें होती हैं वो अचानक से श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं. अंधेरे में अगर आप कोई ब्राइट चीज, फोन फॉर एग्जांपल अगर यूज करते हैं तो आपका जो रेटिना होता है, आपका जो आइरिस होता है वो अपने आप ही एक्सपैंड कर जाता है. तो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग आईज जो होती हैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को एडजस्ट करती रहती हैं. Eyelashes and eyebrows also protect the eyes. Human eyes have the following parts. तो आपकी जो eyelashes होती हैं और eyebrows जो होती हैं वो क्यों होती हैं? ताकि आपकी आंखें, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, डस्ट पार्टिकल से आपको ये प्रोटेक्ट करती है. नाउ लेट्स सी आपके ह्यूमन आई में कितने पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 इज कॉर्निया. It is a transparent membrane that protects the front part of the eye. तो कॉर्निया जो होता है आपकी आंखों में फ्रंट पार्ट में होता है. ये आपके आई का ही एक डायग्राम है जो एकदम फ्रंट पार्ट पे ये एरिया होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और आपकी आंखों को ये फ्रंट से प्रोटेक्ट करके रखता है. दैट पार्ट इज नोन एज कॉर्निया. सेकेंड इज द आइरिस. आइरिस कौन सा होता है? कलर्ड पार्ट होता है. इट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. इट एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. कभी कभी अपनी आंखें आप श्रिंक कर लेते हो, कभी आपकी आंखें एक्सपैंड हो जाती हैं चीजें देखने के लिए, तो ये आइरिस वाला पार्ट होता है जो अपने आसपास की सराउंडिंग के लाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है. देन थर्ड इज योर प्यूपिल. The black spot in the center of the iris is the pupil. Light enters the eye थ्रू प्यूपिल. अब यहाँ पर आपका ये जो आइरिस वाला पार्ट होता है इसी के सेंटर में आपका जो छोटा सा ब्लैक स्पॉट होता है दैट इज योर प्यूपिल. प्यूपिल इज द एरिया जहां से लाइट आपकी आंखों में एंटर करती है. मोर टू नो, the size of pupil is controlled by the iris. It becomes large and dark while small in light so that the right amount of light can enter it. तो आपके जो pupil का साइज होता है वो कौन कंट्रोल करता है? आइरिस, जो उसका एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है आपकी आंखों का, वो आइरिस एडजस्ट करता है प्यूपिल का साइज. अंधेरा होता है, आइरिस आपका प्यूपिल जो होता है वो एक्सपैंड कर जाता है और अगर आसपास लाइट होती है तो अपने आप ही जो आइरिस होता है वो श्रिंक कर जाता है ताकि सही अमाउंट, जितना आंखों में लाइट जानी चाहिए उतनी ही लाइट जाए. नेक्स्ट पार्ट इज आई लेंस. Eye lens lies behind the pupil. It forms the image of the object you see. अब eye lens जो होते हैं ये आपका pupil है, उसके पीछे की तरफ आपके eye lens होते हैं और आप कुछ भी चीज जो देखते हो आपकी आंखों में जब उसका एक इमेज फॉर्म होता है वो कहां पर होता है? आई लेंस में फॉर्म होता है. नेक्स्ट पार्ट इज रेटिना. Retina serves as a screen. Image formed by eye lens is obtained on the retina. Retina contains many nerve cells which are connected to the brain through the optic nerves. As the brain receives the message and interprets this message, an object can be seen. अब आपका रेटिना आता है. रेटिना किस तरीके से काम करता है? जैसे आप कैमरे में भी कभी फोटो को जब कैप्चर कर रहे होते हो या वीडियो बना रहे होते हो तो आपको स्क्रीन में आपके ऑब्जेक्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं. तो रेटिना वो जगह होती है जब आप देखते हो कोई भी चीज. जैसे ही आइरिस से आपका लाइट एंटर करती है उसके बाद रेटिना ही वो जगह होती है आई लेंस के बाद जहां पे आपका इमेज
एक्चुअल में फॉर्म होना शुरू हो जाता है। ये बहुत सारी ऑप्टिक नर्व्स के साथ, ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। जैसे ही इमेज फॉर्म होती है, फटाक से ब्रेन में सिग्नल जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट टू सी द इमेजेस। केयर ऑफ द आईज. Eyes are very delicate organs, so we should give them proper attention. We can take care of our eyes as follows. Always use clean and cold water for washing your eyes. अब बहुत delicate part होते हैं eyes के, कभी भी रब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी आपको अपनी आंखों में फील हो रहा है, डस्ट पार्टिकल फील हो रहे हैं, इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, आपको करनी नहीं है। ठंडे साफ पानी से आपको मुंह धो लेना है। Dim or extra bright light both are injurious for eyes. Always work in proper light. बहुत ज़्यादा कम लाइट और बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट दोनों ही आपकी आंखों के लिए अच्छी नहीं है। अप्रोप्रिएट लाइटिंग जितना ज़रूरी होता है उस लाइट में आपको काम करना चाहिए। Do not read or write anything in a moving vehicle as it can strain your eyes. हमेशा बोला जाता है ट्रेन में, बस में, बाइक पे, आप कहीं पर भी अगर आप मूव कर रहे हो तो मूव करते हुए कुछ भी पढ़ना या फिर लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो आईज होता है, जो फोकस करना होता है आपकी आईज को, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इससे आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ सकता है। Sit at least 8 feet away from the TV. Do not watch TV or work on computer for a long time. TV देख रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, स्पेशली आपके टीवी और लैपटॉप्स के लिए ये आपके लिए एडवाइस है कि 8 फीट दूर, उससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 8 फीट तो आपको दूरी मेंटेन करनी ही करनी है। Never rub your eyes. If you have any trouble in your eyes, wash them and pat with clean handkerchief or a towel. आँखों को रब कभी भी नहीं करना है। आपकी आईज जो होती हैं एक जेली लाइक सब्सटेंस होती हैं, जितना आप उसको रब करोगे वो बहुत ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाती हैं। कुछ भी हो रहा है आपकी आंखों में, ठंडे पानी से मुंह धोइए और साफ कपड़े से या साफ टॉवल से अपने मुंह को आराम से पोंछिए। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज नोज. Nose helps in smelling the things and in breathing. Tiny hair present inside the nose filter the air and prevent dust and germs from entering our body. अब nose आपका next sense organ है, second sense organ है चीज़ें स्मेल करने के लिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए आपके लिए नोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो टाइनी हेयर, छोटे छोटे बाल आपके नोज में होते हैं, वो क्यों होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा इंजूरियस हो सकते हैं। तो यही टाइनी पार्टिकल्स आपके नोज में जो होते हैं उस डस्ट को लंग्स तक या आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स तक जाने से रोकते हैं। So many sensory nerve cells lie inside the nose. These cells detect odors. When tiny particles of anything which gives odor mix with air, they come in contact with these nerve cells. During breathing, then a chemical reaction takes place. As a result, a message is sent to the brain by these nerves and the odor can be detected by us. अब odor का मतलब क्या होता है? स्मेल, किसी भी चीज़ की, खाने की खुशबू हो गई, कचड़े की बदबू हो गई, अच्छी या बेकार। odor का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्मेल। कैसे आपको होती है? आपके नोज में भी बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं जो आपके ब्रेन के साथ अटैच होती हैं। जैसे ही ये जो ओडर होता है, स्मेल जो होता है, हवा के साथ मिक्स होता है, आपकी नोज तक जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से तुरंत आपके ब्रेन पे मैसेज जाता है कि आपके आसपास आपको कोई किसी चीज की स्मेल आ रही है। दैट इज व्हेन एग्जैक्टली यू स्टार्ट टू फील द स्मेल ऑफ एनीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। The nose have different kinds of sensory nerves to detect different odors. तो आपके नोज में भी, जैसे आपकी टंग में अलग अलग टेस्ट बड्स होते हैं, स्वीट के लिए, सॉल्टी चीज़ के लिए, सावर के लिए, बिटर के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से आपके नोज में भी अलग अलग सेंसरी नर्व्स होते हैं अलग अलग स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए। केयर ऑफ द नोज. You can take care of your nose as follows. Keep your nostrils clear by gently blowing it. आपको अपने nostrils को clear करना है कैसे? बहुत आराम से, बहुत तेजी से नहीं करना है, जेंटली आपकी नोज को ब्लो करके, ताकि जितना भी डस्ट है या जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल जाए। डू नॉट इंसर्ट फिंगर इन द नोज एज इट मे कॉज इन्फेक्शन. अपने नोज पिकिंग वैसे भी नहीं करते हैं और अपनी उंगलियों को नहीं यूज करना है आपको अपनी नाक साफ करने के लिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा जल्दी फैल सकता है। टू क्लियर अ ब्लॉक नोज यूज नेजल ड्रॉप्स और इनहेल स्टीम. अगर आपकी नोज ब्लॉक हो गई है, कभी भी हो सकता है, ये मौसम बदलता है, सर्दी हो जाती है, उस टाइम पे आपको क्या करना है? या तो नेजल ड्रॉप्स लीजिए ताकि आपकी नॉस्ट्रल्स खुल जाएं, या फिर आप स्टीम ले सकते हैं, गर्म भाप आप ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज ears. Ears help us hearing the various sounds around us. The part of ear we can see is the outer ear. अब आपको कानों से सुनाई देता है। अब ये जो पार्ट होता है जो आपको विजिबल होता है, ये आपका आउटर ईयर होता है। It works as a funnel that collects the sound waves and passes them to eardrum which lies in the middle ear. उसके बाद क्या होता है?
फनल की तरह ये काम करता है। ये आपका इमेज है, ये फनल की तरह काम करता है। जैसे ही कोई भी आवाज आती है वो आपके इसी फनल, एक आउटर ईयर के थ्रू अंदर की तरफ जाती है, ईयर ड्रम तक पहुंचती है जो आपके मिडल ईयर में होता है। ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन स्ट्राइक्स थ्रू दीज वेव्स, द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड पास into the inner ear where auditory nerve cells are present. These nerve cells send signals to the brain and brain interprets the sound. अब ये क्या होता है, ईयर ड्रम तक पहुंचा मिडल ईयर में, उसके बाद जैसे ही ये आपके अलग अलग ये वाइब्रेशन होती हैं, वाइब्रेशन के साथ वेव्स होती हैं, आपके इनर ईयर में ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, उनके साथ ही कनेक्ट होती हैं, तुरंत ही मैसेज कहाँ जाता है उसके बाद ऑडिटरी नर्व से आपके ब्रेन में, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन यू स्टार्ट टू हियर थिंग्स अराउंड यू। नाउ हाउ टू टेक केयर ऑफ योर ईयर्स? You should always remember the following points. Never insert any pointed thing into the ear. आपके कानों को अगर साफ करना है, खुजली हो रही है, पॉइंटेड चीज का आपको यूज नहीं करना है। बहुत सॉफ्ट आपके ईयर्स होते हैं, ये बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। Do not avoid any earache. Consult a doctor as soon as possible. हल्का सा भी कान में दर्द हो रहा है, that means कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत ही डॉक्टर को जाके कंसल्ट करिए, खुद डॉक्टर आपको नहीं बनना है। इफ एनीथिंग हैपेंस टू गेट इनटू द ईयर एक्सीडेंटली, गो टू अ डॉक्टर एंड हैव इट रिमूव्ड। कान में गलती से कुछ चला गया है, हो सकता है, एक्सीडेंट्स हैपन एनी टाइम, तो ऐसा कुछ होता है तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। डू नॉट लेट वाटर एंटर इन द ईयर्स। नहाते टाइम हो सकता है पानी अंदर जा सकता है, लेकिन आपको पानी अंदर तुरंत ही बाहर निकाल के साफ कर देना है, आपके कानों के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। प्रोटेक्ट योर ईयर्स फ्रॉम वेरी लाउड साउंड्स एंड हार्ड ब्लोज। बहुत ज्यादा देर तक इफ यू आर एक्सपोज्ड टू हाई साउंड, हाई वाइब्रेशंस, तो आपके कानों के लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। बहुत छोटे छोटे नर्व्स आपकी ईयर में होते हैं। लंबे टाइम के लिए अगर आप हाई साउंड के साथ एक्सपोज्ड रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको बहरापन आने लग जाएगा, यानी कि आपके कान को सुनने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो सॉफ्ट साउंड ही प्रेफर करिए। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज टंग. Tongue is the sense organ which helps in detecting the tastes of different food items. In fact, the sensory nerves detecting smell coordinate with taste buds and work together. अब tongue क्या करता है? Tongue helps in detecting different kinds of taste. अलग अलग फूड आइटम्स आप खाते हो, सबका टेस्ट अलग होता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि आपके जो टंग होता है उसमें अलग अलग टाइप के टेस्ट बड्स होते हैं। ये जो सेंसरी नर्व्स होती हैं जिससे स्मेल, आप किसी भी चीज को स्मेल करते हो, वो और टेस्ट बड्स, ये दोनों कोऑर्डिनेटिवली काम करते हैं, यानी कि साथ साथ काम करते हैं। To sense what we call the flavor of food, there are 4 types of taste buds present all over the tongue which helps us to taste sweet, sour, salty and bitter food items. तो ये 4 आपके प्राइम टेस्ट होते हैं। यही 4 टेस्ट बड्स आपके टंग में भी अलग अलग लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं, जिनसे आपको अलग अलग फ्लेवर्स जो आपके खाने के होते हैं वो आपको पता चलते हैं। Taste buds lie inside the little bumps on the tongue. Another kind of receptors present in the tongue report about heat, cold, pain and texture. तो आपने कभी टंग अगर ध्यान से देखी होगी, छोटे छोटे से उसमें बम्प्स होते हैं, रफ सरफेस होता है आपकी टंग का। इस तरीके से आपको छोटे छोटे बम्प्स दिखाई देंगे। इन्हीं बम्प्स में आपका क्या होता है? टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। एकदम टिप पे जो आपकी टंग का टिप होता है, वहां पर हमेशा आपको जो स्वीट चीजें होती हैं वो आपको फील होंगी। अगर आप सीधे कोई भी मीठी चीज टंग के पीछे वाले पार्ट में रखोगे, आपको मीठा फील नहीं होगा। मीठी चीज फील करने के लिए हमेशा आपका जो टंग का टिप होता है वहां पर आपके टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका थोड़ा आगे जाके सॉल्ट होता है, उसके थोड़ा ऊपर सावर, एंड द लास्ट वन इज फॉर बिटरनेस। कड़वाहट आपको सबसे एंड के साइड में फील होती है। केयर ऑफ टंग, ऑलवेज क्लीन योर टंग विथ फ्रेश वाटर एंड टंग क्लीनर। हमेशा अपने क्योंकि टंग आपका एक ऐसा एरिया होता है जहां पर सबसे ज्यादा बैक्टीरियाज आपके रह जाते हैं खाना खाने के बाद। ब्रश तो आपको 2 टाइम करना ही है। इसके अलावा आप जब रात को सोते हैं, सोने से पहले आपको ठंडे पानी और उससे पहले अच्छे टंग क्लीनर, साफ सुथरे टंग क्लीनर जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, उससे आपको अपनी टंग को भी साफ करना है। नाउ नेक्स्ट इज योर स्किन. Skin is the sense organ of touch. It forms a covering of the entire body and protects it against injuries and germs. The skin gives us sensation of touch, heat or cold, pressure, pain and tickling. The skin has a number of tiny pores on its surface which allows waste water to come out as sweat. अब skin जो होता है, skin आपका ऐसा सेंस ऑर्गन होता है जब आप
टच करते हो कोई चीज़ तो आपकी स्किन का फील होता है। और स्किन ही आपकी जो बॉडी होती है उसमें सबसे जो बड़ा ऑर्गन होता है वो आपका स्किन ही होता है, लॉन्गेस्ट ऑर्गन होता है आपकी बॉडी का। अब स्किन जो होता है इसी में आपके अलग अलग जर्म्स भी आपको जो आपको इन्फेक्शन होता है वो भी आपको स्किन से ही होता है। ठंडी चीज़ हो गई, गर्म हो गई, प्रेशर जो आपको फील होता है हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो या इन जनरल भी अगर कोई प्रेशर क्रिएट होता है तो वो आपको स्किन के थ्रू ही फील होता है। आपके स्किन में छोटे छोटे स्पोर्स भी होते हैं, उस स्पोर्स से क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर का जो वेस्ट वाटर होता है वो पसीने के फॉर्म में बाहर एक्सपेल हो जाता है। नाउ हाउ टू टेक केयर ऑफ द स्किन, लेट्स सी। If skin is not cleaned properly, it can cause so many skin problems. So we should take care of the skin as follows. Take bath regularly with clean water and mild soap. It helps in cleansing the skin. अब आपकी स्किन से ही आपको बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर साफ नहीं है तो। अच्छे साफ सुथरे पानी से रेगुलरली आपको डेली शावर लेना है एक माइल्ड सोप के साथ। ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स शुड बी लूज इनफ टू अलाउ फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। अब कपड़े आपको साफ पहनने हैं और बिल्कुल टाइट चिपके हुए कपड़े नहीं होने चाहिए, इतना स्पेसिंग आपके कपड़े और बॉडी के बीच में होना चाहिए कि हवा पास हो सके। इन केस ऑफ एनी कट, स्क्रैच और बर्न ऑन द स्किन, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ जर्म्स। हल्का सा कुछ कट वगैरह होता है तुरंत ही स्किन पे कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, ताकि जर्म्स ना बढ़े। टर्म्स टू लर्न। Brain, controller of the body. Spinal cord, bundle of nerves that connects entire body to the brain through nerves. Motor nerves, nerves which carry message from the brain. Reflex action, automatic response of the body to a stimulus. Sensory nerves, nerves which connect sense organs to the brain or spinal cord. Neurons, nerve cells which join together to form a nerve. Optic nerve, nerves that carry messages from retina to the brain. Sense organs, eyes, ears, nose, tongue and skin that help us to see, hear, smell, taste and feel respectively. रेटिना, अ स्क्रीन ऑन विच इमेजेस फॉर्म बाय द आई लेंस। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है? ब्रेन जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है एक्सेप्ट फॉर वन थिंग एंड दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होती हैं आपकी बॉडी के अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, और ये स्पाइनल कॉर्ड ही डिटरमाइन करता है। देन वी लर्नड अबाउट द 5 सेंसरी ऑर्गन्स जिसमें आपकी आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन आती है जो आपको अलग अलग चीजें करने के लिए यूज में आती हैं। एंड देन योर आईज जिसमें आपका रेटिना होता है जहाँ पे आपकी एक्चुअल जो आप स्क्रीन की तरह काम करता है और आपकी इमेज वहीं परफॉर्म होती है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसकी जितनी भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है।